ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے کافی عرصے بعد حاضر ہوا ہوں۔ بلوچستان میں بہت سارے اس طرح کے ایشوز ہیں، لیکن ان دوران جو ہے وہ ایک ویڈیو اسکینڈل جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے، اور وہ اس وقت خاصا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی زیر بحث ہے، اور اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر بھی جو ہے وہ جگہوں پر بھی یہ زیر بحث آئی ہے۔ اس پر مختلف جو ٹاپکس ہیں، مختلف لوگ ہیں، وہ اس پر اپنی رائے کا اظہار تو کر رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو ہے وہ آفیشلی بھی کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں، آفیشلی بھی کوئی چیزیں ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ناظرین کو دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت سماجی کارکن، سوشل ایکٹیوسٹ حمیدہ نور موجود ہے، جو اس حوالے سے اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں گی، اپنا پوائنٹ آف ویو بھی پیش کریں گی، اور جو ان کو لگتا ہے اس موضوع کے حوالے سے وہ بتائیں گی۔ میڈم، آپ کا بہت شکریہ، پہلے تو آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنے قیمتی وقت سے۔ آپ نے کہا کہ اور بھی بہت ساری مصروفیات ہیں آپ کو۔ سب سے پہلے میم بتائیں کہ آپ اوور آل جو سچویشن بنی ہے، یہ ایک اسکینڈل آیا، اس سے قبل بھی ایک اسکینڈل آیا تھا بلوچستان یونیورسٹی کا، وہ بھی آپ نے دیکھا، اس پر بھی احتجاج ہوئے۔ یہ جو موجودہ اسکینڈل ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ دانش، آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو پہ جو ہے بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ دیکھو، یہ جو اسکینڈل ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بلوچستان یونیورسٹی کا اس سے پہلے بھی اسکینڈل سامنے آیا تھا، اور اسی اسکینڈل پہ جو ہے باقاعدہ تحقیقات نہ ہونے کی وجہ سے اور جو ملزمان تھے ان کو سزا نہ دینے کی وجہ سے یہ ایک نیا اسکینڈل سامنے آیا ہے، اور یہ اس سے بڑھ کے ایک میں سمجھتی ہوں ہماری سوسائٹی کا بہت ہی ایک بھیانک چہرہ سامنے آیا ہے، جس میں جو ہے خواتین کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، اس میں مطلب ہر عمر کے جو ہے ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہ وہ لوگ انوالو ہیں، خواتین بھی اور بچیاں بھی، جو کسی نہ کسی طرح سے اپنی روزمرہ زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، معاش کے لیے، جابس کے لیے باہر نکلی ہیں، اور یہ ان لوگوں کے جو لوگ اس طرح کے لوگ ہیں جو برائیوں میں اور خواتین کو جو ہے ہریس کیا اور ان کو جاب کا جھانسا دے کے ان کے ساتھ جو ہے بلیک میلنگ شروع کر دی۔ تو یہ ڈرگس کا اور اس کے ساتھ پورن انڈسٹری ہے، یہ سارا جو ہے انوالو ہمیں لگتا ہے، کیونکہ یہ کسی ایک بندے کا جو ہے کام نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو نام سامنے آیا ہے وہ ہدایت کا آیا ہے، اور ہدایت اور اس کے 2 بھائی جو ہے وہ اریسٹ ہوئے ہیں، لیکن پروین نامی ایک جو وکٹم تھی جو سامنے آئی تھی، جس کی ویڈیو سب سے پہلے ریلیز ہوئی تھی، وہ لڑکی جو ہے اب بالکل غائب ہے منظر سے۔ اب نہ اس کی کوئی ویڈیو سامنے آ رہی ہے، نہ کوئی اس کا کوئی پیغام آ رہا ہے، نہ ہی پولیس جو ہے اس کو ٹریس کر سکی ہے کہ وہ ہے کہاں۔ آخری اطلاعات جو آئی جی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس کے مطابق وہ کابل میں ہے۔ تو کابل میں ہونے کے پتہ چل گیا ہے، ٹریسز ہو گئے ہیں، تو اب تک اس کو واپس کیوں نہیں لایا گیا، اور اس کے ساتھ اس کی جو مدر ہے وہ کہاں ہے، اس کی بہن ہے وہ کہاں ہے، اور اس کے علاوہ جو اس نے ایک اور نام بھی لیا تھا، بلال نام کا، جو اس نے اپنی پہلی ویڈیو میں، کہ وہ بھی ملوث ہے اس کو اس طرح کے کام کروانے کے لیے۔ تو میرے خیال میں انویسٹیگیشن کا جو دائرہ کار ہے وہ اس کی مدر تک بھی ہونا چاہیے، اس کو بھی سامنے لا کے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ جو جن لوگوں کا نام اس لڑکی نے لیا ہے اس کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی مین رول جو ہے ہمارے ساتھ پروین کا ہے۔ اگر پروین کی ریکوری ہو جاتی ہے تو وہ اس کے جو انفارمیشن ہوگی اس سے ہم باقی اور لڑکیوں تک بھی اس کی رسائی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ یقیناً پولیس جو ہے انویسٹیگیشن کر رہی ہوگی، حساس نوعیت کا معاملہ ہے تو اس پہ اتنا جلدی انویسٹیگیشن سے پہلے کوئی انفارمیشن وہ نہیں دے رہے ہوں گے، لیکن اپنے طور پہ جو ہمیں معلومات مل رہی ہے اس کے مطابق ایک اور لڑکی نے بھی کمپلین کیا ہے، وہ بھی اسی شخص کے نام پہ۔ تو میرا موقف یہاں پہ یہ ہے کہ ہدایت کیا اتنا پاورفل ہے کہ وہ اس بڑے لیول پہ کوئٹہ کے بیچوں بیچ بیٹھ کے اتنی ساری لڑکیوں کو بلیک میل کیا، ڈرگ یوز کرتے رہے، اور ان کی جو ہے ویڈیو بنا کے ان کو ہراساں کیا جاتا رہا۔ تو یقیناً اس کے پیچھے کئی طاقتور ہاتھ ہو سکتے ہیں جن پہ انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب اگر یہ معاملہ دب گیا اس کے بعد پھر کوئی بھی عورت، کوئی بھی بچی اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ ایگزیکٹلی، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت زوراور، وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ زوراور خلق ہیں، زوراور مخلوق اس کے پیچھے ہو سکتی ہے، جس کے کندھوں پر انہوں نے بندوق رکھ کر فائر کیا ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور تصحیح کر دوں کہ ہدایت خلجی اور اس کے بھائی خلیل، یہ تو گرفتار ہیں۔ اس کی جو ان کا جو تیسرا نذیر خلجی نامی، نذیر خلجی عرف شانی، وہ ابھی تک لاپتہ ہے، جس کو گرفتاری کے لیے پولیس
छापे मार रही हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि इस वक्त पुलिस ने 3 टीमें तश्कील दी हैं जो इस पर वो तहकीकात कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके एहलकारों को मिलाकर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाया गया है जो इस पर तहकीकात कर रही है। DIG क्वेटा ने भी चंद रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही थी कि जो ट्रेस किया गया है जिस खातून की का आपने जिक्र किया, वो काबुल में उनकी लोकेशन आई है, और ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त वही एक पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। वज़ीर दाखिला ज़िया लंगो ने भी यही कहा था कि जो जिस खातून ने FIR दर्ज कराई है उसका अभी तक पता तो नहीं लगाया जा सका, लेकिन पुलिस और जो दीगर इदारे हैं वो इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं कि उसको जो है वो मंजर-ए-आम पर लाया जाए, ये खातून गई तो कहाँ गई। अब उसके अलावा जो एक इस्लाही कमेटी बनाई गई है हज़ारा कम्युनिटी की जानिब से, आप क्या समझती हैं कि ये इस्लाही कमेटी किस हद तक जो है वो इस हवाले से अपना किरदार अदा कर सकेगी? देखिए, सबसे पहले तो मेरा तहफ़्फ़ुज़ात ही इसके नाम पे है कि इस्लाही कमेटी। आप किसकी इस्लाह करना चाह रहे हैं? हिदायत की इस्लाह करना चाह रहे हैं, या वो विक्टिम लड़कियाँ हैं उसकी इस्लाह करना चाह रहे हैं, या वो ख़वातीन और बच्चियाँ जो घरों में रहती हैं, आप उनको ये कहना चाह रहे हैं कि जी आप दुपट्टे और चादरें पहन के बाहर निकलें, या बुर्के पहन के बाहर निकलें, तो आपको हिदायत जैसे बंदे जो हैं वो ना हरेस करेंगे, ना ब्लैकमेल करेंगे। तो नाम पे मेरे थोड़े-से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस्लाही कमेटी के बजाय अगर इसको रैपिड रिस्पॉन्स टाइप का इस तरह का कोई रिस्पॉन्सिव कमेटी होनी चाहिए थी, जो इस तरह के विक्टिम्स को सामने लाती, उनकी रिहैबिलिटेशन करते हैं, उनके साइकोलॉजिकली उनकी काउंसलिंग की जाती, ताकि वो जो है एज़ अ गवाह सामने आएँ, क्योंकि केसेस हमेशा कमज़ोर तब होते हैं जब आपके कोई मुद्दई नहीं होता। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी वाला केस भी जब हमने देखा था, तो वहाँ पे भी मुद्दई का सामने ना आने की वजह से, क्योंकि उसको सोसाइटी की तरफ से वो प्रोटेक्शन नहीं होता। यहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग और शेमिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बच्चियाँ कहती हैं हमारी जो नुकसान पहले हो चुका सो हो चुका, वो किसी की नज़रों में नहीं है, हम नज़रों में नहीं आना चाहते। तो अब ये इस्लाही कमेटी जो है, शायद वो उन बच्चियों तक रसाई करके उनको जो है सही सीधे रास्ते पे लाना चाह रहे हैं कि क्या करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल मेरे थोड़े-से तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके नाम पे। बाकी काम क्या कर रहे हैं, ये फिर वो जो कम्युनिटी है, हज़ारा कम्युनिटी के जो ये रिलीजियस ग्रुप है, वो खुद ही बता सकते हैं। लेकिन ये खुश-आइंद है कि उन लोगों ने स्टैंड लिया है और वो जो है इस केस को फ़ॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि सिविल सोसाइटी का इसमें क्या रोल है, और सिविल सोसाइटी अपना किस मौक़िफ़ पे यहाँ पे जो है स्टैंड लेती है। क्योंकि जब भी हमने देखा है कि जहाँ पे भी रिलीजियस ग्रुप शामिल हो जाते हैं, तो वहाँ पे सिविल सोसाइटी थोड़ा-सा श्रिंक हो जाती है, क्योंकि उनको ये खौफ़ होता है कि कहीं इन पे फ़ितवे ना लगना शुरू हो जाए। एग्जैक्टली आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। मैं एक चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि चंद रोज़ कबल जब इस्लाही कमेटी का ऐलान हुआ था, तो उनके कन्वेयर की क़यादत में अल्लामा हसनैन की क़यादत में जो 11 रुकनी इस्लाही कमेटी थी, उन्होंने क्वेटा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का इंकशाफ किया था कि ये जो ग्रोह है, इन्होंने सिर्फ ख़वातीन को जो है वो नहीं फंसाया अपने जाल में, बल्कि जो लड़कियाँ थी, लड़कियों से ज़्यादा ख़वातीन की तादाद थी जो इस ग्रोह का शिकार बनी है, और अभी तक वो जो है वो खामोश हैं। वो ये जो कमेटी थी, ये इनका काम बेसिकली ये था बकौल उनके कि हमारा काम ये है कि जो ये तो वाक़या हो गया, इसमें जो मुतासरा लड़कियाँ और जो ख़वातीन हैं उनको एक तो एक तहफ़्फ़ुज़ के तहत मैदान में लाया जाए, और इस हवाले से उनको शऊर दिया जाए जो बकाया लड़कियाँ हैं कि इस तरह के जो है घिनौने जो काम है उनसे बचा जा सके। हिदायत खिलजी और जो दीगर अफराद है उनसे इस तरह, चूँकि हिदायत तो एक हिदायत है, वो तो अरेस्ट हो गया, इस तरह और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, जिनका काम अभी भी चल रहा होगा उसी तरह। तो अब बहरहाल जो होता रहा है वो तो हम सबके सामने है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सिविल सोसाइटी भी इस हवाले से सामने आई है, इस्लाही कमेटी भी बन गई है। आप क्या समझते हैं कि इन तमाम ये जो तमाम पॉइंट्स है, ये सब इस हवाले से कोई अपना एक मुत्तफ़िका लाहे अमल तय कर पाएँगे? देखिए, अभी तक तो हम किसी पॉइंट पे इकट्ठे हुए ही नहीं है, जिस पे जो है मुत्तफ़िका राय हो सके। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, एक लड़की एक और सामने आई थी, लेकिन हमने उस तक रसाई करने की कोशिश की है, लेकिन वो जो इस्लाही कमेटी के कारकुन हैं, वो उन तक रसाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको जो है कहीं जो है मतलब खुफ़िया जगह पे रखा गया है। अब वो जो ये बात कर रहे हैं कि ये ख़वातीन इतनी हैं, तो वो कहाँ हैं? वो सामने क्यों नहीं आ रही? उनकी एफआईआर क्यों नहीं आ रही? अब ये जितनी भी ख़वातीन हैं, उनका जो सोर्स बना है वो हिदायत बना है। लेकिन उनको कहाँ-कहाँ भेजा गया है, किन-किन के पास गई हैं वो, कहाँ तक वो इस्तेमाल हुई हैं, ये डेटा तो वो ख़वातीन दे सकती हैं। अब जब तक उनको सामने आप नहीं लेके आ सकते, तो तब तक आपके सामने वो असल मुल्ज़िमान नहीं आएँगे।
हमारा बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे औरत को जो है बस वो एक जिस्म और गोश्त का लुथड़ा समझ के बस इस्तेमाल किया जाता है। तो यही हिदायत जो है अगर उनको ब्लैकमेल किया, हैरेस किया है तो उनके साथ ज़्यादती सिर्फ़ हिदायत ने नहीं की होगी, यकीनन ये बड़ी-बड़ी जगहों पे भेजी गई होंगी और वहाँ पे उनका इस्तेमाल किया गया होगा। तो ये लड़कियाँ जब सामने आएँगी, वो ख़वातीन सामने आएँगी, तभी जाके ये डेटा सामने आएगा कि कौन-कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। क्योंकि अभी हिदायत जैसा बंदा अभी नहीं हो पा रही इतनी मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं कि उसपे कोई मस्बत हमें जो है प्रोग्रेस नहीं मिल रही मीन्स के कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। कोई लोग हैं जो इसको जो है सपोर्ट करना चाह रहे हैं और इस मामले को दोबारा लपेटना चाह रहे हैं। बिल्कुल मैडम आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। आपने अपने इतने बिज़ी स्केड्यूल से हमें वक़्त दिया। कुछ और बातें ऑडियंस के लिए यहाँ पर शेयर कर दूँ। पहले तो ये है कि हिदायत जिस तरह यहाँ पर इस वक़्त एक हिदायत जो है वो अरेस्ट हुआ है, उसका भाई है। इस तरह और भी बहुत सारे हिदायत होंगे जो हमारी माँ, बहन, बेटियों को जो है वो इसी नज़र से देखते होंगे। और इसके अलावा जिस दूसरी खातून का आपने ज़िक्र किया, जो दूसरी खातून जिन्होंने हिदायत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, उसके जो है वो मेडिकल किया गया था और उसके मेडिकल में ये बात ज़ाहिर हो गई थी, ये इस बात का इंकशाफ हुआ था कि इस खातून के साथ ज़्यादती हुई है। इस खातून का जो है मेडिकल वो बीएमसी फुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में हुआ था, जिसमें ये बात वाज़ेह हो गई थी, इसके जो है अलामात और सबूत मिले थे कि खातून के साथ ज़्यादती की गई है। नाज़रीन इसी मौजू के साथ अपने इस प्रोग्राम को बात जो भी है करना चाहूँगी जी, जी। कि जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं जैसे मतलब ये वाक़या रूनुमा हुआ है, ये असल में जॉब्स की वज़ह से हुआ है। तो अभी हुकूमत वक़्त को थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि यहाँ पे गुर्बत कितनी ज़्यादा है, बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा है और इस बेरोज़गारी से तंग होके किन-किन रास्तों पे जो है लड़कियाँ जाने पे मजबूर हैं या जो लड़के हैं वो जाने पे मजबूर हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो है स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले और जितनी भी जो जॉब्स वग़ैरह हैं, जो वैकेंट हैं, उनको अनाउंस करे और इन बेरोज़गार लोगों को जो है फैसिलिटेट बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन एक और तस्दीक कर दूँ कि तमाम के तमाम यहाँ पर जो ख़वातीन हैं ना, वो जॉब्स की उसके लालच में नहीं आए। बहुत सारे ऐसे हैं, उसमें भी आपको मुझसे बेहतर इल्म होगा। लेकिन सूरत-ए-हाल इस वक़्त जो है वो सबके सामने है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो दीगर इदारे हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब तक कोई ऐसा सामने कोई चीज़ साफ़ नहीं आई, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, चूँकि इन्वेस्टिगेशन का अमल भी है। ये अदालत में भी ये चल रहा है और उसके अलावा हिदायत इस वक़्त जो है वो पुलिस की कस्टडी में रिमांड पर। तो इसी के साथ नाज़रीन अपने जो मेज़बान हैं और अपने मेहमान हैं उन दोनों को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।